অখিল ভারতীয় ধোবী মহাসংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে হয়ে গেল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রবিবাসরীয় সকালে মহাজাতি সদনের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবিরের। ভারতের সংবিধানের জনক বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের 135তম জন্মজয়ন্তীকে স্মরণ করে এদিনের রক্তদান সমর্পিত করা হয়। বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের আদর্শকে পাথেয় করে অখিল ভারতীয় ধোবী মহাসংঘ সমাজের কল্যাণের কাজ করে চলেছে। প্রথমে বাবা সাহেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে উপস্থিত সদস্যরা। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পৌরপিতা রাজেশ সিনহা, বোড়োচারের চেয়ারপারসন তথা পৌর মাতা সাধনা বোস। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য সভাপতি সঞ্জয় রজক, উপসভাপতি শম্ভু রজক, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুরজ রজক, কার্যকারী সভাপতি রবি রজক, কোষাধ্যক্ষ মুকেশ রজক, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ রমেশ লাল চৌধুরী, সহকারী সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত দাস, রাজকুমার রজক সহ অন্যান্যরা। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় রক্তদানে রক্তদাতাদের ভিড় ছিল নজরকাড়া। এবছর ৪র্থতম বর্ষে পদার্পণ করল এই রক্তদান শিবির। किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती को हर साल आप लोग जानते होंगे हम लोग यहाँ से पद यात्रा करते हैं 14 अप्रैल को, जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर रेड रोड में जाके बाबा की मूर्ति में समापन होती है। लेकिन हम लोग बोले कि वो करके रैली करके तो कोई ये नहीं है, इससे हम लोग समाज को क्या दे रहे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाबा साहेब जन्म जयंती को उपलक्ष्य करने के लिए हम लोग समाज को रक्तदान के रूप में एक तोहफा देंगे, जिसमें जितने भी हमारे समाज के लोग रक्तदान करेंगे जो समाज के भलाई के काम में, जान बचाने के काम में आएगी। तो ये निर्णय लेकर के हम लोग पिछले 4 वर्षों से, ये हमारा 4था वर्ष है, हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अभी तक 60 लोग दे चुके हैं, 100 का हमारा टारगेट है। मैसेज यही है कि हम लोग, हमारे जो बाबा साहेब ने जो संविधान के रचयिता है, इन्हें जिस कष्ट से, जो चीज़ को तकलीफ सह कर यहाँ तक पहुँचे हैं, संविधान को बनाए, हम लोग उस कष्ट को, वो जात पात के भेदभाव को दूर करना चाहते हैं। और ब्लड डोनेशन, रक्तदान करना, इससे बढ़िया संदेश कुछ नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा इंसानियत का कोई काम नहीं है। आप किसी को रुपया देंगे, आज देंगे कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रक्तदान अगर देंगे तो किसी की ज़िंदगी बढ़ जाएगी, जिसकी आयु को आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसकी आयु कितनी हो सकती है। এই যে বার্তা আমাদের যিনি অ্যাডভোকেট পিপি স্যার, মানে এত ভালো মেহতাব বক্স স্যার যে এত সুন্দর বক্তব্যটা দিলেন আজকে ভীমরাও আম্বেদকর, ডক্টর ভীম 135 বার্থ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আজকে ধোবী মহাসভা এত সুন্দরভাবে, অখিল ভারতীয় ধোবী মহাসভা এত সুন্দর, প্রত্যেকবারের মতো এবারও অনেক সুন্দরভাবে রক্তদান উৎসবটা করলেন। এখানে বহু মানুষ রক্ত দিয়েছেন। এখানে দেখুন রক্তের কোনো জাত হয় না, এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই সব ভাই এসে এখানে রক্তদানটা করলেন। তা আমরা রক্ত পাত চাই না, রক্তদান চাই। আমরা বাংলার মানুষ, আমরা যখন দেখবেন ঈদ হয়, আমরা ঈদে আমরা আমরা মুসলমান ভাইদের বাড়িতে যাই, আর আমাদের দিওয়ালিতে আমরা ওনাকে ইনভাইট করে ওনারা আসে। তো আমরা বাংলার মানুষ সবাই একসাথে আমরা এখানে বসবাস করি। আমরা সবার অনুষ্ঠানে সবার আমরা একসঙ্গে ওই করবো। এখানে কোনো জাত নেই, আর রক্তের কোনো ধর্ম হয় না। রক্ত যখন আপনি ব্লাড ব্যাংকে যখন রক্তটা দরকার হয়, একটা যে হিন্দু ভাই বলবে কি আমি এটা মুসলমানের রক্তটা নেবো না, আর চাই একটা মুসলমান বলবে এই রক্ত আমি নেবো না, এটা না। রক্ত একটা জীবন দান, রক্ত কোনো জাত হয় না। প্রত্যেকটা মানুষ এটা ভেবে নিলে অনেক নিজেকে উন্নতি করা যায়। আর প্রত্যেকটা মানুষকে একটাই বলবো, যারা নিজে বাঁচতে গেলে রক্তদান করতে হবে। ইয়াং জেনারেশন 18 থেকে 65 বছর অব্দি আপনারা রক্তদান করতে পারেন। আর যারা রক্তদান কোনো দেননি দেখবেন তারই রক্ত দরকার পড়ে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, রক্ত দিতে গেলে নিজে সুস্থ থাকতে হবে। রক্ত ভালো করে নিজে 3 মাস অন্তর অন্তর রক্তদান করবেন, মহিলা 4 মাস অন্তর অন্তর রক্ত করবেন। রক্তদান আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক। ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ডোনেশন ফোরামের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে জানাই, ধোবী মহাসভাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। मौका है सर। मैं अपने जूनियर सूरज रजक को पहचानता हूँ। उसके आह्वान पर कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हो जाते हैं बहुत सारे प्रोग्राम में। और मैंने ये भी देखा है
रवि अपने सूरज रजक को देखा है, या मैं जब इधर में आता हूँ ये भीम बाबा, देखिए यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आप उनके फॉलोअर्स हो तो नेचुरली उनका जो सोच रहता है, उन्होंने जो अपने सोच से हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की है, और वो कोशिश सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इतने बड़े आदमी दुनिया का बहुत सारा प्रॉब्लम हिंदुस्तान पे वो बर्दाश्त किए, तो उसी चीज को सामने रख के उन्होंने समाज को बदलने का कोशिश किया। तो हमारा समाज क्यों नहीं बदल रहा है, उनके फिलॉसफी पे या उनकी बात पे क्यों नहीं गौर फिक्र कर रहा है, सो जाता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि हमारा समाज जो है वो सोया हुआ नहीं बल्कि मटिया के बैठा हुआ है, उसको जागना चाहिए, उसको उठना चाहिए और जो बेहतर काम है वो करना चाहिए। और अभी ये समाज का बहुत बड़ा काम ये है कि मुल्क जिस सिचुएशन पे जा रहा है उसमें ये समाज, हमारा समाज जो है, वो भी समाज एक रोल प्ले कर सकता है। अपना जो व्यवसाय है ना बहुत क्षति पहुंचता था शारीरिक रूप से, तो वो जो बीमार पड़ने के बाद ना बड़ी असहाय महसूस करता था, किसी को रक्त नहीं है तो किसी को क्या नहीं है। तो हमारे जो नवजुवक है उनको हम लोग সাপোর্ট किए कि नहीं। এটা 4 বছর চলছে রানিং। আমরা 4 বছর থেকে অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, এখন অবধি 35 চলছে। আর আমাদের এটা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করা হয় আপনার বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তী উপলক্ষে, যেটা আমরা 14 এপ্রিলে বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়ন্তীতে আমরা মিছিল বার করি, র্যালি বার করি, আমরা ওনার উপলক্ষে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করি। এই জন্যই করি কি আপনারা জানেন কি ব্লাডের যা ক্রাইসিস, যেমন এখন সবথেকে বেশি খারাপ লাগে যেটা হচ্ছে বাচ্চাদের থ্যালাসেমিয়া যে রোগটা চলছে, খুব ক্রিটিক্যাল, ব্লাড পাওয়া যায় না, প্লাস ব্লাড ক্যান্সারের জন্যে। তারপরে আরও অনেক এমন পেশেন্ট থাকে যাদের হিমোগ্লোবিন কম থাকে বা আরও কিছু আদার্স সবই কিছু নিয়ে এই উপলক্ষে আমরা করি তাকে মানুষের সেবাটা হোক। আমরা এই যে ব্লাড ডোনেশনটা ক্যাম্প করি আমরা এটা মানুষের জন্য সেবার জন্য করি, তাকি এখানে কোনো জাতি কোনো ধর্ম নিয়ে আমরা তাকি সবাই সব জাতি ধর্মকে ভালো হোক। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल प्रांत कलकत्ता शाखा की अध्यक्ष सरोज गर्ग, हम लोग यहाँ पर आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ के ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग सहयोग करने भी आए हैं और इस कैंप में उपस्थित होकर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया नहीं जा सकता है, और हमारी ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ऑल ओवर इंडिया में है, तो इसमें हम लोग विभिन्न तरह के प्रकल्प करते हैं। जैसे हम लोग पर्यावरण में भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाना आदि सभी कुछ काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम करते हैं। बाल विकास के लिए हम लोग स्कूलें गोद लेते हैं, स्कूल के बच्चों को सहयोग करते हैं, वहाँ पर हम लोग बहुत तरह से हम लोग सहयोग करते हैं। इसी तरह से हम लोग का रक्तदान भी एक प्रकल्प है, जिस प्रकल्प के अंतर्गत हम लोग नेत्रदान के ऊपर में भी जोर देते हैं कि भाई जो नेत्रदान आज कितने लोगों को रोशनी दे सकता है, उसके ऊपर में अंगदान और प्रत्येक चीज़ के ऊपर में हमारे यहाँ से बहुत हम लोग महिलाएं लोग इसमें सक्रिय हैं। कलकत्ता शाखा की तरफ से यह रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है जो कि धोबी महासंघ के साथ मिलकर के किए हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुचारू रूप से किया है इन्होंने ऑर्गेनाइज। रक्तदान करना एक अपने आप में बहुत बड़ा दान है जिसका कोई मोल नहीं है और जिसका को हम धन से न खरीद सकते हैं न हम बेच सकते हैं। इसलिए रक्तदान सबको करना चाहिए, जहाँ तक हो सके। हम लोग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ है उसमें जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके रक्तदान सबको करना चाहिए। इससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है और रक्तदाताओं की ज़रूरत भी पूरी होती है।